A very warm and fresh good morning to all of you. How's you all, everyone? I hope you all are fit and fine at your homes. So, now, as you all know, we had completed our chapter number 15. So, today we will do quiz zone and our exercises. Okay, now let's begin. See the quick review of this chapter. First, substances extracted from the earth are called minerals. जो सब्सटेंस हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी जो सब्सटेंस हम अर्थ से निकालते हैं उनको हम बोलते हैं मिनरल्स. ओके. Second point is minerals can be divided into metallic and non-metallic mineral. Everyone just take out page number 93 of your books. Please open your books and everyone just put your fingers where I am reading, okay? And try to understand. See, minerals can be divided into metallic and non-metallic mineral. मिनरल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो मेटेलिक मिनरल में और दूसरा नॉन मेटेलिक मिनरल में. मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिनमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे आयरन ओर, कॉपर, मैंगनीज, निकल. Okay, and non-metallic minerals are those minerals which do not have metallic properties. Example, limestone, dolomite, mica and gypsum. Okay. Third point is metallic minerals can be further divided into ferrous and non-ferrous mineral. हम metallic mineral को दो पार्ट में और डिवाइड करते हैं, एक तो ferrous mineral and एक non-ferrous mineral. What are ferrous mineral? Ferrous mineral are those minerals which are having iron content. मैंने आपको बताया था कि जो ferrous mineral होते हैं उसमें iron content होती है. ओके, जैसे एग्जाम्पल मैंगनीज, टंगस्टन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा. एंड जो नॉन फेरस मिनरल होते हैं वो होते हैं जिसमें हमको आयरन नहीं मिलता है. नॉन फेरस मिनरल्स आर दोज दैट डू नॉट कंटेन iron. Okay, example gold, silver, copper, tin, etc. Understood, everyone? Now see the fourth point. mica is the non-metallic mineral. mica कौन सा है? non-metallic mineral है because in mica there is non-metallic properties. उसमें metallic properties present नहीं होती इसलिए वो non-metallic mineral है. Okay, now see the fifth one. Energy sources are of two types, conventional and non-conventional. energy sources को एक नाम से हम और क्या बोलते हैं? फ्यूल मिनरल्स बोलते हैं. वो कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं. वन इज कन्वेंशनल एंड अनदर वन इज नॉन कन्वेंशनल. ओके, इन कन्वेंशनल रिसोर्सेज देयर आर फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा. ओके, और नॉन कन्वेंशनल में कौन से होते हैं? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी. ओके, बट इन दिस चैप्टर वी हैड read about conventional energy in description. Okay, now next one is coal and petroleum and natural gas are conventional source of energy. कोल, गैस, पेट्रोलियम ये जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ आते हैं वो सारे हमारे कन्वेंशनल एनर्जी है. कोल हमारा फॉसिल फ्यूल है. ओके, और जो पेट्रोलियम है उसको हम मिनरल ऑयल और क्रूड ऑयल भी बोलते हैं. और नेचुरल गैस हमारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल है जिसको हम एनर्जी फ्यूल और रॉ मटेरियल दोनों ही तरह से यूज़ कर सकते हैं. ओके, now the next one is last, as our resources are limited we must use them wisely. अब हमारे जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही लिमिटेड है यानी बहुत कम मात्रा में है तो हमको उनका यूज़ वाइजली यानी बहुत अच्छे से उसका यूज़ करना चाहिए, अच्छे से उनको यूटिलाइज करना चाहिए. ओके एवरीवन, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द क्विक रिव्यू ऑफ दिस चैप्टर. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्विज जोन. A part, that is multiple choice question. Which one of the following is made up of metal? कौन सा ऐसा है इसमें से? C, is a wooden chair is made up of metal? No. B, a plastic door? No. An iron chair? Yes, the iron chair is made up of metal. So tick the option C.
Everyone just tick the option C, an iron chair. Now the next one is second one, ferrous metals are those which contain. जो फेरस मेटल होते हैं उनमें क्या होता है, आयरन कंटेंट प्रेजेंट होता है. सो सी, टिक द ऑप्शन डी, आयरन. टिक द ऑप्शन डी, आयरन. थर्ड वन इज, इट इज यूज्ड इन द एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन. इलेक्ट्रिक आयरन में कौन सा मिनरल यूज किया जाता है, कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है, माइका. सो एवरीवन जस्ट टिक द ऑप्शन सी, माइका. फोर्थ वन, एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम. एल्यूमिनियम हमको कहाँ से मिलती है, बॉक्साइट से, और इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कहाँ पे है, ओडिशा में है. सो एवरीवन जस्ट टेक द ऑप्शन ए, बॉक्साइट. लास्ट वन इज, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इज. जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मैंगनीज का क्या है, कौन है, ओडिशा है. सो टेक द ऑप्शन सी, ओडिशा. Have you all done? Okay, now we will just recheck it. First one is option C, an iron chair. Second one is option D, iron. Third one is option C, mica. Fourth one is option A, bauxite. Fifth one is option C, Odisha. Now B part, that is fill in the blanks. First one is dash is obtained from bauxite. हमें bauxite से क्या मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है. So write here everyone, aluminium. ALUMINIUM, aluminium. सेकेंड वन इज डैश इज द हार्डेस्ट मेटल नोन टू मैन. हमने पढ़ा था ना कि हमारा जो हार्डेस्ट मेटल है सबसे ज़्यादा वो डायमंड है, और जो सबसे ज़्यादा सॉफ्टेस्ट मेटल है वो कौन सा है, सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, टैल्क है. सो इन दिस राइट डायमंड, DIAMOND, डायमंड. नाउ थर्ड, ऑयल इज रिफाइंड इन एन ऑयल डैश. ऑयल कहाँ पे रिफाइन करते हैं, हमने कल पढ़ा था ना, ऑयल रिफाइनरी में. REFINERY, रिफाइनरी. फोर्थ वन इज डैश इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री. इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में क्या यूज किया जाता है, कॉपर, COPPER, copper. C, fifth one, dash is an important coal field in West Bengal. वेस्ट बंगाल का important coal field कौन सा है, रानीगंज, RANIGANG, रानीगंज. Now we will recheck again. Aluminium is obtained from bauxite. So write aluminium, ALUMINIUM, aluminium. C, the second one is diamond. Hardest metal is diamond, DIAMOND. थर्ड वन इज ऑयल इज रिफाइंड इन एन. ऑयल को कहाँ पे रिफाइन करते हैं, ऑयल रिफाइनरी में. सो राइट हियर REFINERY. फोर्थ वन इज डैश इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, कॉपर, COPPER, copper. Fifth one is dash is an important coal field in West Bengal. वेस्ट बंगाल का important coal field कौन सा है, रानीगंज, RANIGANG, रानीगंज. ओके. C,
सी पार्ट दैट इज राइट ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. अभी हमको ट्रू फॉल्स लिखने हैं. फर्स्ट, इंडिया इज रिच इन कॉपर रिसोर्सेज. नो, सो राइट हियर फॉल्स. Second one is mica is a metallic mineral. No, mica is not a metallic mineral. Mica is a non-metallic mineral. So write here false. You can write F or false. Okay. Third, coal is a conventional source of energy. Coal एक conventional source of energy है. Yes, true. You can write true or T. Fourth, petroleum is found in छोटा नागपुर प्लेट्यू. पेट्रोलियम छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलता है हमें. फॉल्स. नो, ये हमको जो माइका है वो हमको छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलती है. सो राइट हियर फॉल्स और एफ. फिफ्थ वन इज नेचुरल गैस इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस. yes, natural gas is transported through pipelines. Now just recheck everyone. First one is false, second one is false, third one is true, fourth one is false, and fifth one is also true. Okay, now everyone just turn your pages. See the D part, that is match the column. See the match the column A and column B. First one is diamond. See the fifth one in column B, that is hardest mineral. Yes, diamond is the hardest mineral. So write fifth near diamond. Second one is manganese. Manganese is a steel. Okay, हम जो मैंगनीज बनाते हैं उसको हम स्टील मैन्युफैक्चरिंग करने में काम आता है. सो राइट फोर्थ नियर मैंगनीज. Gold is a precious metal, so write second near gold. Fourth one is coal. Coal is a conventional source of energy, so write third near coal. Petroleum is found in Mumbai High, so write first near Mumbai High. Okay everyone. सी डायमंड के पास में आपको फिफ्थ नंबर डालना है. नियर मैंगनीज राइट फोर्थ, नियर गोल्ड राइट सेकेंड, नियर कोल राइट थर्ड, एंड इन नियर पेट्रोलियम राइट फर्स्ट. ओके, आई होप यू ऑल हैव डन द क्विज जोन. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द राइटिंग जोन. ओके, सी एवरीवन. This is our writing zone of our chapter 15, that is mineral and energy resources. So answer the following questions of this chapter. Question number first. What is a mineral? Mineral क्या होता है मैंने आपको बताया था. A mineral is a solid naturally occurring inorganic substances extracted from the earth. Example iron ore, copper, etc. मिनरल एक सॉलिड और नेचुरली अकरिंग यानी जो नेचुरली आता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिसको हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी अर्थ से बाहर निकालते हैं, उसको हम मिनरल बोलते हैं. ओके, और मिनरल के एग्जांपल है आयरन ओर, कॉपर एक्सेट्रा. ओके, वंस अगेन आई रिपीट, अ मिनरल इज अ सॉलिड naturally occurring inorganic substances extracted from the earth. Example iron ore, copper, etc. Okay, see the question number second. Name two metallic and non-metallic minerals. हमको दो मेटेलिक और दो नॉन मेटेलिक मिनरल्स लिखने हैं. इसमें ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो लिखे हैं वही आप लिखो. आप अपनी मर्जी से कोई और दूसरे दो भी लिख सकते हो जो आपको बुक में गिवन हो. बुक के बाहर से आपको नहीं लिखने हैं. ओके, टू मेटेलिक मिनरल्स आर मैंगनीज एंड निकल. ओके, आपके बुक के अंदर गिवन है मेटेलिक मिनरल्स में आयरन ओर, कॉपर, manganese and nickel. You can also write iron ore and copper. Okay, I had written here manganese and nickel. Okay, second, two non metallic minerals are limestone and mica.
आप इसमें लाइमस्टोन और माइका की जगह आप डोलोमाइट एंड जिप्सम भी लिख सकते हैं। ये भी दो तरह के नॉन मेटेलिक मिनरल्स है जो आपकी बुक्स में गिवन है। ओके, सी two metallic minerals are manganese and nickel. Two non-metallic minerals are limestone and mica. Okay. Third, give one use of each iron ore, copper and bauxite. हमको इसका one uses देने हैं कि ये किस में यूज आते हैं। A part, iron ore. Iron ore is extracted from the iron ore and iron. आयरन ओर हमको कहाँ से मिलती है? आयरन ओर और आयरन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मशीन। ये हमको किस में यूज़ आती है? मशीन्स बनाने में यूज़ में आती है। ओके, बी दैट इज़ कॉपर। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। कॉपर हमको किस में यूज़ आता है? इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में काम आता है। ओके, C. Aluminium. It is used for making utensils, aeroplanes, etc. एल्यूमिनियम हमें क्या बनाने में काम आता है? यूटेंसिल्स, एरोप्लेन्स और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें एल्यूमिनियम से बनानी होती है। जैसे एल्यूमिनियम से हमें यूटेंसिल्स और एरोप्लेन्स तो मिलते ही हैं, लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें होती है जो एल्यूमिनियम से बनती है। ओके, again I repeat, iron ore is extracted from the iron ore and iron. It is used for making machines. B part, copper. It is used for making electrical wires. C, aluminium. It is used for making utensils, aeroplanes, etc. Okay, now the next question is question number 4, that is, what do you understand by the term conventional resources? इसका मतलब है कि आप conventional resources से क्या समझते हैं? Conventional resources are resources which are traditionally used. ऐसे resources जो हम traditionally use करते हैं उनको हम conventional resources कहते हैं। जैसे firewood, coal, petroleum, ये सब चीज़ें क्या है? conventional resources है। These resources are generally non-renewable resources. ये ऐसे resources है जो कि non-renewable होते हैं। Okay everyone? Again I repeat, conventional resources are the resources which are traditionally used. These are generally non-renewable source of energy. Okay? Question number 5, वाई शुड वी कंजर्व मिनरल्स? हमको मिनरल्स को क्यों कंजर्व करना चाहिए? वी शुड कंजर्व मिनरल बिकॉज आर इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा डिपेंड ऑन दैम. दीज रिसोर्सेज वंस यूज्ड गेट एग्जॉस्टेड. सी, हमको मिनरल्स इसलिए कंजर्व करने चाहिए यानी इसलिए बचाने चाहिए क्योंकि जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, ट्रांसपोर्ट, ये सब किस पे डिपेंड होते हैं? मिनरल्स पे डिपेंड होते हैं और हमको इसलिए इसका ध्यान से यूज़ करना चाहिए. अगर हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे. एग्जॉस्ट यानी ख़त्म हो जाएंगे. ओके, तो हमको इसका अच्छी तरह और जुडिशियस यूज़ करना चाहिए. I repeat once again, we should conserve minerals because our economic development like agriculture, industries, transport, etc. depend on them. These resources once used get exhausted. Okay. Now 6th part. Why is petroleum also called mineral oil? हम पेट्रोलियम को मिनरल ऑयल क्यों बोलते हैं? सी एवरीवन, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका ब्रेन क्वेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है. ओके, इन ब्रेन क्वेस्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई इज पेट्रोलियम ऑल्सो कॉल्ड मिनरल ऑयल. ओके, ये आपको अपनी FNB यानी फेयर नोटबुक में करना है. पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक ऑन द अर्थ. पेट्रोलियम हमको कहाँ से ऑब्टेन होता है? हमारे अर्थ में सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उससे मिलता है. सो इट इज़ कॉल्ड मिनरल ऑयल. इसीलिए हम इसको मिनरल ऑयल बोलते हैं. इसके यूजेस क्या क्या है? एज अ फ्यूल भी यूज़ होता है, रॉ मटेरियल की तरह भी यूज़ होता है, फॉर वेरियस पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, और ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में भी यूज़ में आता है. ओके एवरीवन, पेट्रोलियम इज
oil obtained from sedimentary rock of the earth, so it is called mineral oil. इसके uses है first as a fuel, second as a raw material for various petrochemical products. Okay everyone, I hope you all understood this. See everyone, in fun zone C part, that is explore your world. अभी इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है, वाई हैज़ द यूज़ ऑफ कोल बीन रिड्यूस्ड कंसिडरेबली, यानी इन दिनों जो कोल का यूज़ है वो कम क्यों हो गया है, और फाइंड आउट द अदर मीन्स विच आर रिप्लेसिंग द यूज़ ऑफ कोल। इसका मतलब है आपको कुछ ऐसी चीज़ें बतानी, यानी अदर मीन्स बताने हैं जिसमें जो कोल है उसका जो यूज़ है वो किस वजह से कम हो गया, ऐसी कौन सी चीज़ें आ गई है हमारे कि जिससे कोल का यूज़ कम हो गया है। ओके, सो यू हैव टू फाइंड दिस क्वेश्चन। ओके, and in brain quest question number 3, that is what do we use in kitchen, you have to find out also that कि किचन में CNG यूज़ होता है या LPG यूज़ होता है। ओके, I will ask you in the online classes everyone, so please find it out. Okay, so everyone, we had completed this chapter also, so please revise it at your homes. Okay, till that, bye everyone, have a nice and a great day. Thank you.